Very good afternoon, everybody. Please give me a thumbs up if the audio is clear. All right. मैं assume कर रहा हूं कि जो हमने कल क्लास में किया था वो तुम लोगों ने घर जाके रिवाइज कर लिया होगा, राइट? क्योंकि अगर तुमने कल वाली चीज को घर जाके रिवाइज नहीं किया तो आज जो हम क्लास में करने जा रहे हैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। हो सकता है मैं जल्दी से कैलकुलेशन कर दूं और तुम्हें लगे कि तुम बहुत ही लेट हो रहे हो उसमें, राइट? सो I'm assuming I'm starting this class with this assumption that you have already revised what we did in yesterday's class, because in today's class we are not going to do anything new. हमने जो कल की क्लास में किया था, in yesterday's class we saw that टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है. आज हम इसी को यूज करके वी वुड बी डूइंग सम क्वेश्चंस ऑन दिस, राइट? So with that we are starting with today's class. और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं जस्ट 2 मिनट लूंगा कल की क्लास को रिवाइज करने में. तो कल हमने क्या देखा था कि अगर एक मेरे पास एक प्रोजेक्टाइल है, if I fire this projectile at a speed of u at an angle of theta with the horizontal, then my time of flight is equal to 2u sine theta by g. If I fire my projectile at a speed of u at an angle of theta with the horizontal, then my time of flight is 2u sine theta by g, and my range is u square sine 2 theta by g, and my maximum height is u square sine square theta by 2g. I hope you guys have revised all this. So with that, अच्छा, अगर तुम्हें इसको derive करना है ना, by the way, अगर इसको तुम्हें derive भी करना है, so it hardly takes around 30-40 seconds of time to derive this. अभी 30-40 seconds, कुछ देर बाद तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे. Let's say the velocity is u, this angle is theta. So this velocity can be divided into two parts. This velocity can be called u sine theta, and this velocity can be called u cos theta. अब देखते हैं ये u sin थीटा ऊपर वाली वेलोसिटी है, इसको टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाने में कितना टाइम लगेगा? u sin थीटा बाय g. ऊपर जाने में टाइम लगेगा u sin थीटा बाय g, नीचे आने में भी टाइम लगेगा u sin थीटा बाय g. टोटल टाइम इज 2u sin थीटा बाय g. दिस इज टाइम. रेंज क्या होगी? टोटल टाइम into the horizontal speed, क्योंकि horizontal direction में कोई acceleration नहीं है. So horizontal range is just speed into time. This is the time, this is the speed. So 2u sin theta by g into u cos theta. This gives me u square 2 sin theta cos theta is what? Sin 2 थीटा बाय g. अब अगर मेरे को मैक्सिमम हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट पे जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो नहीं होगी मैक्सिमम हाइट पे, बट वर्टिकल वेलोसिटी विल बी जीरो. सो आई कैन से दैट 0 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा minus 2gh. So h comes out to be u square sine square theta upon 2g. So these are the three formulas I have. एक बार इसको derive करो, okay? Take around 60 seconds of time. Just derive these three formulas. तुम्हें just 30-40 सेकंड लगेंगे. एक बार अपनी लैंग्वेज में derive कर लो इसको. Okay, I'm erasing all this. एक बार बोर्ड पे मत देखना. Just derive these formulas by yourself. ओके, एक बार मैं इसको नोट कर लेता हूं क्योंकि हमें पूरे चैप्टर में काम आएंगे, आज पूरी क्लास में ये काम आएंगे. सो द फर्स्ट वन इज टाइम इज इक्वल टू
what? Time is equal to 2u sine theta by g, and range is equal to u square sine 2 theta by g, and height is equal to u square sine square theta upon 2g. इसको यहीं पे पड़े रहने देते हैं क्योंकि ये काम आएंगे हमें आज पूरे लेक्चर में, ठीक है? So if this is clear to you, I'm starting with the very first question. The first question is, a projectile is fired. A projectile is fired at a speed of 60 root 2. A projectile is fired at a speed of 60 root 2 at an angle of 45 degrees with the horizontal. Please keep noting it down. थोड़ा सा तेज लिखना पड़ेगा तुम्हें. A projectile is fired at a speed of 60 root 2. Is fired at an angle of 60 root 2. Is fired at a speed of 60 root 2 at an angle of 45 degrees with the horizontal. The question is, find the speed of this projectile at the highest point. Find the speed of this projectile at the highest point. You have 2 minutes. Yeah. Please unmute your microphones and answer. Is it 0? Sir, 0. Sir, 0. Speed of the projectile at the highest point. 0. Sir, 0. Sir, 0. 0. ये सारे जो 0 0 कर रहे हैं 0 नंबर मिलेंगे तुम्हें इसके. Speed of the projectile at the highest point. दोबारा से देखो इसको. Okay. 15. 15. भावना, how 15? से पहले टाइम निकाल लिए फिर हाइट निकाल ली. ओके, चलो अभी इसको ध्यान से देखते हैं, ठीक है? थोड़ा सा अभी ध्यान से देखना ना, तुम्हें इमेजिन करना पड़ेगा. मोशन इन 1D तुम्हें समझ में आ गया. तुम लोग अभी 0 0 0 0 बोल रहे थे सब लोग. इसका मतलब पिछला चैप्टर तुम्हें समझ में आ गया. अच्छी बात ये होगी कि पिछला वाला चैप्टर समझ में आ गया, राइट? अभी हम देखते हैं इस वाले चैप्टर में क्या हो रहा है. इस वाले चैप्टर में मैंने जिस वेलोसिटी से उसको फेंका, लेट्स से आई थ्रो दिस विद द वेलोसिटी ऑफ u एंड द एंगल जिस पे फेंका गया, द एंगल इज थीटा. फिर मैंने क्या बोला कि ये जो u को मैंने थीटा से फेंका है, क्योंकि ये 2D मोशन में ऐसे जाएगा और 2D मोशन का मैं सीधा सीधा एनालिसिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो 1D में है, तो मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं ताकि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए. तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मैंने क्या किया, दिस इज वन वेलोसिटी व्हिच इज u sin थीटा, दिस इज वन वेलोसिटी व्हिच इज u cos थीटा. अब इसको हम अलग से एनालिसिस करेंगे. ऊपर वाली जो डायरेक्शन है वर्टिकल वेलोसिटी, इसको अलग से एनालिसिस करेंगे. ये नीचे वाली वेलोसिटी को अलग से एनालिसिस करेंगे, राइट? ये मैं लिख रहा हूं वर्टिकल. वर्टिकल में कैसा होगा और हॉरिजॉन्टल में कैसा होगा. तो ये तो होगी इनिशियल वेलोसिटी. तो इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी है, u sin थीटा. इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी है, u cos थीटा. इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है? ये वाले u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी. अब एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन. अब मैं किसी चौक को ऊपर फेंकूं तो एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन क्या है, माइनस g. ऑलवेज माइनस g. एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, 0. राइट? या देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और दोनों का टाइम विल बी सेम. अब तुम देखो, इसको ध्यान से देखो, ठीक है? ये वाली जो वर्टिकल वेलोसिटी है u sin थीटा,
ये कम होती जाएगी, u sin थीटा विल डिक्रीज, ये कम होते 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 टॉप मोस्ट पॉइंट पे u sin थीटा विल बिकम 0। लेकिन ये जो u cos थीटा है, this velocity will never change because there is no acceleration in the forward direction। तो ये वेलोसिटी रहेगी u cos थीटा 1 सेकंड बाद, लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट इज 10 सेकंड्स, ठीक है। तो ये जो u cos थीटा 1 सेकंड बाद कितना रहेगा, u cos थीटा, 2 सेकंड बाद u cos थीटा, 3 सेकंड बाद u cos थीटा, 4 सेकंड बाद u cos थीटा, 10 सेकंड बाद u cos थीटा। लेकिन ये जो u sin थीटा है, ये वेलोसिटी पहले कम होके 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 0 बन जाएगी, फिर उसके बाद बढ़ते 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 u sin थीटा बन जाएगी। थोड़ा समझते हैं सिनेरियो को, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। लेट्स से द प्रोजेक्टाइल इज लाइक दिस, यहां से स्टार्ट हुई प्रोजेक्टाइल, यहां पे जाके ऐसे गिर गई, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ बिगिनिंग में द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाज u cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट इज u sin थीटा। एक सेकंड बाद क्या होगा, एक सेकंड बाद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी सेम u cos थीटा एंड द वर्टिकल कंपोनेंट विल बी, उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 10, बिकॉज एक्सेलरेशन कितनी है, -10। सो दिस वैल्यू विल बी u sin थीटा माइनस g। फिर 2 सेकंड बाद दिस विल बी u cos थीटा, और ये वाला कितना हो जाएगा, u sin थीटा माइनस 2g। फिर एक पॉइंट आएगा टॉप पे जाके, जब ये वर्टिकल वेलोसिटी ये वाली वेक्टर 0 हो जाएगा, लेकिन उस टाइम पे भी ये जो राइट वाला है ये तो रहेगा ही ना u cos थीटा। Then a point will come that this is u cos theta and then there is a downward velocity, then u cos theta downward velocity 2g। फिर नीचे आके this is u cos theta and downward velocity u sin theta। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है का मतलब क्या है कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos theta will never change। So if this horizontal component will never change, topmost point पे the velocity will be, okay, अगर मेरे को एक्चुअली में इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना, topmost point पे the velocity will be u cos theta i, ये तो है आगे वाली फॉर्म में, प्लस 0j। अब ये 0j है तो इसको मैं कुछ नहीं लिख रहा, इसको मैं 0j को मैं कुछ नहीं लिख रहा क्योंकि वो 0 ही है। तो बेसिकली दिस इज माय वेलोसिटी u cos थीटा। यस, प्लीज गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आया। बाकी लोग, all right, please note this down, this is very important, you need to imagine the scenario। मैंने जब बोला कि मैंने u से फेंक दिया उस चीज को, पिछली क्लासेस में मेरा सही था, मोशन इन 1D में मेरा सही था, मैंने कोई कार जा रही है 60 की स्पीड से, अब वो कार 60 की स्पीड से ही जा रही है, इसमें कुछ भी चक्कर नहीं है। पिछले चैप्टर में क्या था, मैंने चौक को ऊपर फेंका 30 की स्पीड से, अब ये 30 की स्पीड से ही ऊपर जाएगा, इसमें तुम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर रहे। लेकिन इस क्वेश्चन चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, वो जा तो रहा था u की स्पीड से, लेकिन मैंने इस u को छोड़ ही दिया। मैंने कहा भैया ये u क्योंकि एक एंगल पे है, तो मेरे को एंगल पे एनालिसिस करना भी आता नहीं है, तो मैंने ये जो u था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, u cos थीटा, u sin थीटा। जो एक 2D मोशन था, इसको इस तरीके से तुम समझ सकते हो, एक 2D मोशन का क्वेश्चन था, उसको मैंने 2 1D मोशन के क्वेश्चंस में बदल दिया। ये थोड़ा सुनने में ठीक लग रहा है। एक 2D मोशन का क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऐसे, इस क्वेश्चन को मैंने कैसे बदल दिया कि एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है ऐसे ऊपर जाके नीचे, एक प्रोजेक्टाइल जा रहा है सीधा। क्वेश्चन तो था कि एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर जाके नीचे और एक सीधा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमारी जो इक्वेशंस जो हमें लगानी आती है वो हमें एक ही डायमेंशन में इक्वेशन लगानी आती है, राइट। आर यू एबल टू कनेक्ट मैं क्या बोल रहा हूं सब लोग?
So what we have done is we have changed a 2D motion question to two 1D motion questions. Please note this down. जो भी हमने लिखा, जो भी हमने बोला अभी तक, please note it down. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. Okay, first of all, is this clear? Please give me a thumbs up. Is this clear? Bhavna, Manan, Twinkle. Yeah. And QCOM BTD. Okay, QCOM BTD. Is it Nitya? Can you please answer? सर साहब ओए, नाम बदल गया तुम्हारा? QCOM हो गया? सर दूसरे डिवाइस से कर रहे थे. अच्छा अच्छा, ठीक है, रीनेम कर सकते थे उसको वैसे. ओके ओके, साइक समझ में आ गई? साइक समझ आए? ओके, या ठीक है जी, नोट कर लो इसको थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अगर मैं तुम्हें पूछूं, इसको ना थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो तुमने किसी पार्टिकल को फायर कर दिया 30√2 की स्पीड से. 30√2 की स्पीड से तुमने फायर कर दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री के एंगल पे तुमने 30√2 की स्पीड से एक पार्टिकल को फायर कर दिया. अब इसे अगर मैं कंपोनेंट्स में डिवाइड करूं तो हॉरिजॉन्टल कितना कंपोनेंट हो जाएगा? 30√2 into cos of 45, that is 1/√2. So this horizontal component is 30. horizontal component is 30. What is the vertical component? 30. Okay, so horizontal component है उसका 30, vertical component है 30. जल्दी से मेरे को बता दो टाइम ऑफ लाइट. टाइम ऑफ लाइट अबे बताओ, टाइम ऑफ लाइट 6 seconds. 6 seconds. Sir, Right? सर 6 6 seconds. सेकंड. Yes, very good. So 6 सेकंड में वो यहाँ पे t is equal to 0, यहाँ पे t is equal to 6 seconds. तो यहाँ पे ना मैं देखता हूँ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी के जो कंपोनेंट्स है वो चेंज कैसे हो रहे हैं. तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 30, वर्टिकल कंपोनेंट इज 30. एक सेकंड बाद हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज हाउ मच? कितना लिखूं? एक सेकंड बाद क्या लिखूं? 20. वर्टिकल कंपोनेंट इज 20, स्पीड उसकी 10 कम हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना लिखूं? सर 30. 30. दिस इज एक सेकंड बाद. 2 सेकंड बाद क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट. Sir, 30. सर हॉरिजॉन्टल 30, वर्टिकल 10. 10. ओके, ठीक है जी. 3 सेकंड बाद. अब 3 सेकंड बाद मैं कौन सा पॉइंट बनाऊं? 3 सेकंड बाद ये कौन सा वाला पॉइंट होगा? 0 सर हो मैक्सिमम जाएगी हाइट वाला. इट्स मैक्सिमम हाइट. वेरी गुड, बिकॉज 6 सेकंड में पूरी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है. तो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या बनाऊं? इस डायरेक्शन में 30, ऊपर 0. 0. 4 सेकंड बाद 10 और 30. 5 सेकंड बाद 20 और 30. 6 सेकंड बाद 30 और 30. सॉरी 30 and 30. तो अगर मैं तुमसे रैंडमली क्वेश्चन पूछ लूं कि एक पार्टिकल को फायर किया गया 30√2 की स्पीड पे एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बताओ 5 सेकंड बाद पार्टिकल की स्पीड क्या होगी? द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन समझ लो ध्यान से. एक पार्टिकल को फायर किया गया 30√2 की स्पीड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. यही क्वेश्चन है जो हमने बनाया है. Find the speed of the particle. Speed, mark my words very carefully. Speed of the particle after 5 seconds.
स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड्स बोर्ड पे है तुम्हारे, पिछला क्वेश्चन भी यूज करना पड़ेगा, पिछला चैप्टर स्केलर्स और वेक्टर्स। स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 5 सेकंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को पॉइंट बता दो, कौन सा पॉइंट बन रहा है। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ, दिस इज एच। Sir, F. Which one? F. I'm sorry? F. Sir, F. F point, sir. All right, so this is the point. तो पॉइंट मेरे को पता चल गया। अब इस Sir, 50? 50 no Yes, sir. no wrong. So velocity at this point is 30I minus 20J. ये velocity है यहाँ पे, सही है ये चीज, है ना? अगर ये velocity है तो इस velocity की मैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालता हूं? ये स्टार्टिंग में देखो, शुरू में देखो, ये था 30 और ये था 30, तो इसको मैंने 30√2 कैसे बनाया, या फिर 30√2 से ये दोनों कैसे बनाए? अगर इससे मेरे को एक वेक्टर बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको पैरेलली शिफ्ट करूंगा, तो ये बन जाएगा इधर 30, दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये वाला वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या है 30√2। ओके, पिछली क्लास, ठीक है, हमने किया ये स्केलर्स और वेक्टर्स में। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है कि वेक्टर है मेरा इस तरीके से, इधर है 30, इधर है 20। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो 20 है इसको मैं यहां पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, दिस बिकम्स 20 एंड दिस इज माय वेक्टर। सो इसकी वैल्यू क्या है, √of 30 square plus 20 square is equal to √of 1300 is equal to √13 into 10. Give me a thumbs up if this is clear. Note भी कर लो. And I want to remind you once again, this is what happens. अभी जो हुआ ना तुम्हारे साथ, this is what happens when you don't revise. अभी हम चैप्टर नंबर 2 पे हैं, ठीक है? पहला तो छोड़ दो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस, वो बच्चों वाला चैप्टर है। उसके बाद हमने 2 ही चैप्टर किए, मोशन इन 1D किया, स्केलर्स और वेक्टर्स किया, अब हम मोशन इन 2D कर रहे हैं। तो फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट, जैसे जैसे तुम्हारे आगे वाले सब्जेक्ट्स बढ़ते जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये ना हिस्ट्री नहीं है कि पहले मैंने तुम्हें अकबर के बारे में पढ़ा दिया, अब मैं तुम्हें किसी और कंट्री के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो उस वहां पे जाके तुम पीछे वाली क्लास को छोड़ भी सकते हो, भूल सकते हो। बट इन फिजिक्स व्हेन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दिस मीन्स कि अब तुम्हें पीछे वाला चैप्टर और ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। अगर मैंने पीछे वाला चैप्टर इसलिए छोड़ दिया कि यार ये तो डिफिकल्ट है, ये तो मेरे को समझ नहीं आया, अगली क्लास से अच्छे से पढ़ूंगा जाके, ठीक है, ये छोड़ देते हैं, इसको एंड में कर लूंगा, अगली क्लास से पढ़ता हूं। दिस इज अ वेरी हॉरिबल आइडिया इन फिजिक्स। यू कैन डू दिस इन बायोलॉजी, यू कैन डू दिस इन योर zoology, mathematics to some extent, physics, chemistry, this is a very, very horrible idea if you do this, right? So as you move forward, it becomes more and more and more important to revise and practice the questions of previous chapters. Okay? अब पिछले चैप्टर्स के सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पिछले चैप्टर्स में तो तुम्हें अच्छे से पढ़ाया गया था, प्यार प्यार से। पिछले चैप्टर में तो मैंने तुम्हें लिखवाया भी था, अगर तुम अपनी बुक खोल के देखोगे ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स खोल के देखोगे, तो हमने क्या लिखा था, रिजल्टेंट इज इक्वल टू √of a² plus b² plus 2ab cos थीटा। अब अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक है 30, एक है 20, तो मेरे को ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दिस इज 30² plus 20² plus 2 into 30 into 20 into cos of 90. Cos 90 is what? 0. So this gives me √of 30² plus 20² is equal to √of 1300.
100। तो ये तो मेरे को सीधा सीधा समझ में आ गया। अब मुझे लगेगा कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं क्यों करूं इसके क्वेश्चंस मैं क्यों सॉल्व करूं, इसमें है ही क्या, है ना। अगर तुम मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दे दोगे, ठीक है, मान लो मैं तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया, एक की वेक्टर है इधर 7, दूसरा वेक्टर है इधर 3, दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। अब मैं ये भी सॉल्व कर दूंगा, इसे सॉल्व करने में क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। ए स्क्वायर कितना हो गया 49, बी स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री, दिस इज √3/2। ये कट गया, सॉल्व करके मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन थी, ये जो फॉर्मूला था, इससे रिलेटेड मैंने सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लिए, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट आ गया। बट I need to practice these questions again and again and again. I need to practice these questions. It's very very important. क्योंकि जब मैं तुम्हें अचानक से बोल दूंगा कि एक पार्टिकल को फायर किया मैंने 40√2 की स्पीड से, and the angle of projection is 45 degrees. Find the velocity or find the speed of the particle after 4 seconds. तो एकदम से मेरे को वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, राइट। कर दो इसको। 40√2 से एक पार्टिकल को फायर किया 45 डिग्री पे एंगल में, 4 सेकंड बाद स्पीड बता दो पार्टिकल की। (40√2 से फायर किया। Sir, 40i minus 0j. Yes, yes, yes. Very good. Very good. 40i plus 0j. And the speed is 40. Yeah? Speed is 40. Sir, 40. 40, yeah. So the speed is 40. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन पूछ लूं? हो गया सबका? Give me a thumbs up. हो गया सबका? Kashish and yeah. All right. Next question is, find the speed of this particle after 8 seconds. Sir, 0. No. No. So 40i plus 40j. No. छोटी सी मिस्टेक भावना। प्लस माइनस का फर्क रह गया। 40i minus 40j. वेरी गुड। 40i minus 40j। स्पीड कितनी होगी? स्पीड स्पीड्स Sir, 40√2. यस, वेरी गुड। 40√2। ठीक है जी, बाकी लोग मनन सहायक समझ आ रहा है क्या क्या बोल रहे हैं ये लोग? मनन सहायक, गिव मी अ थम्स अप इफ इट्स क्लियर, नहीं तो फिर बता दो। ओके ओके, लेट्स थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं इसको। ये मैंने फेंका। सबसे पहले तो ना मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ यार। जब भी मैं किसी चीज को 45 डिग्री के एंगल पे फायर कर रहा हूं, व्हेन आई एम फायरिंग अ पार्टिकल एट 45 डिग्री, तो हमेशा याद रखना कि 45 डिग्री मींस एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। 45 डिग्री पे फायर करने का मतलब है, ये अगर 45 है, ये भी 45 होगा ना। तो अगर ये दोनों 45 है, दैट मींस दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। दैट मींस जो भी ये साइड है x, सो दिस विल बी द पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगेगी। लेट्स से दिस साइड इज x, दिस साइड इज x, सो दिस बिकम्स √2x। ठीक है। अगर यहां पे मेरे को साइड दी होती, लेट्स से मेरे को रैंडम साइड दे दी गई 30√2, 30√2 की स्पीड से फायर किया, मतलब ये 30√2, एंगल इज 45 डिग्री, तो ये बन गया 30, ये बन गया 30।
ओके ये वाला एंगल बहुत क्वेश्चंस में तुम्हें सॉल्व करने को बोला जाएगा, तो इसको एक बार रट्टा मार लो। 45 डिग्री का एंगल मतलब तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी इज सेम, एंड हाउ मच इज दैट? तुम इसको डिवाइड कर दो √2 से। ओके अगर बच्चों वाले तरीके से करना है तो तुम वैसे भी करके देख सकते हो कि 30 √2 into cos 45 that is 1/√2 कट गया, sin 45 भी 1/√2, तो बेसिकली 30 रह गया, 30 आगे 30 ऊपर, फाइनल क्या आ गया 30 √2, राइट। एक तो ये चीज याद रखना तुम, ये वाला 45 डिग्री का एंगल, और एक दूसरी चीज याद रखना, अगर मेरे पास कोई ट्राइंगल है, इफ आई हैव अ ट्राइंगल, दिस साइड इज 3, this side is 4, then how much is this side? 5. Yes, 5. 5. 5. पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, ये पाइथागोरस थ्योरम का सबसे बेसिक वाला ये ट्राइंगल है, 3 4 5 वाला। अब इसमें तुम एक चीज को याद रखना, ये जो एंगल होते हैं 90 डिग्री, ये जो बाकी दोनों एंगल होते हैं ना ए और बी, दीज एंगल्स आर 37 डिग्रीज एंड 63 डिग्रीज, तो 53 नहीं होगा? या 53? Sir, 53. yes 53 because sum 90 आना चाहिए ना, so this is 37 degree and 53, okay, 53 plus 37 is 90, okay, I'm sorry मैंने 63 बोल दिया, so these two angles are 37 and 53। अब एक मेरे को चीज बता दो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगा के, कौन सा एंगल 37 होगा, कौन सा एंगल 53 होगा? एंगल ए 37 होगा। एंगल ए 37 होगा, क्यों? तो ट्रिग्नोमेट्री बताओ। कैसे, क्या लगाया ट्रिग्नोमेट्री में, कौन सा फॉर्मूला? Sir, angle A 53 होगा. यस Yes, sir. Angle 53 and B. Sir, angle A 53. मैंने क्या पढ़ा था थोड़ा सा, मैंने पिछले चैप्टर्स में 10th में मैंने पढ़ा है कि अगर एक ट्रायंगल है तो जो बड़ी साइड होती है, बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल होगा, या अगर मेरा एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। तुम इसको इमेजिन करके देख लो, एक ऐसी ट्रायंगल है मेरे पास, ये एंगल छोटा सा एंगल है बेचारा, ये 10 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी। अगर मैं इस एंगल को बढ़ा दूं, इस एंगल को मैंने कर दिया 45, तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। इस एंगल को मैंने और बढ़ा दिया तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी होगी। तो मतलब जो साइड होती है, जितनी बड़ी साइड होती है उसके सामने वाला एंगल भी उतना बड़ा होता है। अब ये 5 जो है, 5 के सामने तो 90 है, बच गए 3 और 4, तो 3 और 4 के सामने एक होगा 37, एक होगा 53, तो 3 के सामने होगा 37, 4 के सामने होगा 53। कशिश, गिव मी अ थम्स अप अगर समझ आ गया। ऑल राइट, तो पिछले 5 मिनट में जो भी हमने किया, 3 4 चीजें नोट कर लो जल्दी जल्दी से। एक तो वेलोसिटी वाली चीज कि वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कम होती 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 0 होके फिर उसके बाद बढ़ेगी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। So once you're done with this, your next question is, please note down the next question. A projectile is fired. A projectile is fired at a speed of, please mark my words, speed. Speed मतलब scalar. इसमें कोई IJ नहीं होता. A projectile is fired at a speed of 50 meters per second. 50. A projectile is fired at a speed of 50 meter per second at an angle of 37 degrees with the horizontal. At an angle of 37 degrees with the horizontal. The question is, find the time of flight, find the horizontal range, find the maximum height. Janam Sukhadam
Sir, time 6 seconds. Yes, time 6 seconds. Very good. More than your answer, I like the approach. 6 सेकंड तो सबका आएगा, लेकिन सबका जब ये 6 सेकंड आएगा ना, वो भी आएगा 30-40 सेकंड के बाद. What I like about you is the way you solved it. Right? तुमने बिना इक्वेशन बना के सॉल्व किया. मैं वही चीज चेक कर रहा था. Very good. Time is 6 seconds. अच्छा, रेंज भी बता दो यार जल्दी से. Sir, range 300 meter and height, sir, 90. रेंज 300 मीटर. Yes, sir. गलत है. क्या किया इसमें? फॉर्मूला लगा दिया. Yes, sir. गलत लगा दिया. कैलकुलेशन मिस्टेक. उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी मैं भी फॉर्मूला लगाया था. टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकाला था ट्विंकल? So formula, sir. अच्छा, फिर वो भी गलत है. मैं अपना वो वेरी गुड वापस लेता हूँ. इसका मतलब यही है कि तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड थोड़ी सी अच्छी है, इसलिए तुमने बाकी लोगों से पहले कर लिया. पर ये बच्चों वाला तरीका है, ठीक है? बच्चों वाले तरीके से सब लोग आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन लेट निकालते हैं. या और ये फॉर्मूला लगा के भी आंसर गलत आ रहा है तुम्हारा. आई थिंक द रेंज इज नॉट 200. Sir, 300 बोला था. 300. ओके, 300 भी गलत है. 240 आनी चाहिए रेंज मेरे हिसाब से. कैलकुलेशन मिस्टेक चेक करो एक बार. ऑलराइट, ऑल द अदर गाइस, क्या क्या आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज. ओके, एनीबॉडी आंसर्स? कोई और? ओके, ट्विंकल देख लिया तुमने? 300 भी गलत आ रहा है. There's a calculation mistake in 300. Yes, sir. Yeah, so the answer is 240, right? Okay, sir. अच्छा यार, एक बार अनम्यूट करो सब लोग, मेरे को बताओ प्रॉब्लम क्या आ रही है. Is the calculation complex? या तुम्हें वेलोसिटी को फैक्टराइज ही नहीं कर पाए हो? क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? Okay, everybody, all of you, Bhavna, Kashish, Manan, Saik, please unmute yourselves. Please unmute yourselves. और बताओ मेरे को कि टाइम निकल गया तुम्हारा अभी तक? टाइम का आंसर आ गया? Yes, sir. ओके, कितना आ गया टाइम? 6 seconds. ओके, सबका 6 आ रहा है. गिव मी अ थम्स अप अगर 6 आ रहा है. ओके, अबे तो थम्स अप दे रहे हो सब लोग, तो आंसर क्यों नहीं बताया अभी तक? 6 आ गया. ऑलराइट, नाउ फाइंड द रेंज एंड हाइट्स. ऑलराइट, सो हाउ वी डू दिस इज, मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ इसको. ओके, देख लो एक बार, ठीक है? मैं कैसे कर रहा हूँ. पार्टिकल को फायर किया 50 की स्पीड से. अब मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ इसको, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दैट यू गाइस आर स्ट्रगलिंग इन दिस.
अच्छा, गिव मी अ थम्स अप इफ यू पीपल आर स्ट्रगलिंग विद दिस। थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये सारी चीजें, दिमाग लग रहा है इसमें काफी। नो, ओके, इट्स इजी राइट। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो कर रहा हूं इसको बिकॉज आई एम फीलिंग दैट यू गाइज आर गेटिंग स्टक समवेयर। तो मैंने उसको फायर किया पार्टिकल को एट अ स्पीड ऑफ 50। This angle was 37 degrees, so that means this velocity is 40, this velocity is 30. अगर ये तुम्हें एकदम से ऐसे करने में मुश्किल आ रही है, एकदम से तुम इसको 40 30 नहीं निकाल पा रहे हो, then you apply the formula. This velocity is 50 cos 37. 50 cos 37, that means 50 into 4 by 5. Which gives me 40. Similarly, this velocity is 30. Okay. So मेरी जो velocity है, it comes like this: 40 and 30. Right? अब सबसे पहले तो मैं तुम्हारे वाले तरीके से करके दिखाता हूं, जैसे तुम कर रहे हो। T is equal to, so you are saying T is equal to 2u sin theta by g. ये फॉर्मूला तुमने लगा लिया, राइट? नाउ अनम्यूट योरसेल्व्स एंड टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u। यहां पे मैं क्या वैल्यूज पुट करूं? मेरे को 2 की वैल्यू तो पता है, g की वैल्यू भी पता है। अब यहाँ पे u और sin थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स। Sir, 50 into 3 by 5. Yes, 50 into 3 by 5. 50 into 3 by 5. U is 50 and sin theta is 3 by 5. तो 50 into 3 by 5 में इसको पुट कर सकता हूँ, राइट? सब लोग मानते हो ना इस चीज को? लेकिन now I want you to realize कि U sin theta को मेरे को अलग अलग पुट करने की जरूरत नहीं है। U sin theta होता क्या है? U sin theta is the vertical velocity. If this is U, then this is U sin theta. This is U sin theta and this is U cos theta. मतलब जो ऊपर वाली वेलोसिटी है that is U sin theta. यहाँ पे ऊपर वाली वेलोसिटी is 30. मतलब सीधा सीधा मेरे को U sin theta ही दे रखा है। तो सीधा सीधा जब उन्होंने मेरे को U sin theta दे रखा है, so I can directly put this as 30. This gives me 6 seconds. Please give me a thumbs up. समझ में आया तो? Yeah? Okay. So ये मेरा 6 सेकंड आ गया और मैंने फॉर्मूला लगा के 6 सेकंड निकाल लिया। बहुत अच्छी बात है। But now I want you to imagine, ये जो मेरी स्टार्टिंग में वेलोसिटी दी गई थी मेरे को, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट था that was 30, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट was 40. मैं थोड़ी सी इसकी स्पीड चेंज कर रहा हूं, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज कर रहा हूं। एक और प्रोजेक्टाइल है, देयर इज अ न्यू प्रोजेक्टाइल जिसमें वर्टिकल वेलोसिटी तो यही है 30 और जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो है 40 करोड़। दैट इज 400000000। दैट इज अ ह्यूज नंबर। इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? ठीक है, ये ऊपर वाली वेलोसिटी है 30, जैसे इसकी 30 थी, ऊपर वेलोसिटी है 30, नीचे वाली वेलोसिटी है 10 करोड़। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे करके जाएगी, आगे वाली ऐसे घूम करके जाएगी ऐसे करके। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस प्रोजेक्टाइल? एनीबॉडी? Time of flight for this projectile, anyone? फॉर्मूला लगाओ ना, सेम फॉर्मूला लगेगा यार, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगाओ। जैसे मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट, इस प्रोजेक्टाइल का मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ।
The time of flight is equal to 2u sin by g. इसका मतलब क्या है? 2u sin थीटा मतलब ये वैल्यू ना, u sin थीटा इज 30 upon 10 is equal to 6. मतलब सेम वैल्यू आ गई ना मेरे पास. Are you getting all this? कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या इसमें? Did you understand this? ये भी 6 कैसे आ गया? ये भी 6 आ गया क्योंकि u sin थीटा सेम था. क्योंकि u sin थीटा सेम था तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट भी ऐसी आ गई. अब एक और प्रोजेक्टाइल है जिसमें ये वैल्यू तो है 30, ये वैल्यू है 50 करोड़. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 6 सेकंड. 6 seconds. 6 seconds, sir. क्योंकि u sin थीटा नहीं बदला. एक और प्रोजेक्टाइल है, ये तो है 30, ये वैल्यू है, ये भी वैल्यू है 30. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 6 सेकंड. 6 seconds. अब एक और प्रोजेक्टाइल है, ऊपर वाला तो है 30, नीचे वाला है एनी रैंडम नंबर. इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? 6 seconds, because the u sin theta is not changing for these projectiles. तो बेसिकली जो मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट है that depends upon the vertical component of the projectile. My time of flight depends only on the vertical component of the projectile. तो अगर मेरी horizontal velocity कुछ भी आ रही है, I should not get confused with this. Horizontal velocity अगर कुछ भी आ रही है तो ये मेरे को confuse नहीं करनी चाहिए, because time of flight is entirely dependent on the vertical velocity. अब अगर मैं तुम्हें कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन दे दूं कि एक पार्टिकल को मैंने फायर किया, उसकी राइट हैंड साइड पे स्पीड थी 40 और ऊपर वाली स्पीड थी 40, तो इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट तुम बड़ी आसानी से निकाल लोगे. जो 40 है ये बनेगा 4 सेकंड में जाएगा ऊपर, 4 सेकंड में आएगा नीचे, सो दिस बिकम्स 8. अगर यहाँ पे 40 की जगह होता 70 तो टाइम ऑफ फ्लाइट 8 ही रहना था. ये 40 की जगह अगर होता 90, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम ही रहना था, बिकॉज टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन u sin थीटा. टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड्स अपॉन u sin थीटा. अब हमारा असली वाला क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे, दैट इज कि 50 से फायर किया किसी को एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज. तो इसके मैंने कंपोनेंट्स निकाल लिए. दिस इज 30, दिस इज 40. इसके मैंने कंपोनेंट्स बना लिए 30 और 40. तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, दैट टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी डिपेंडेंट अपॉन ओनली ऑन दिस वैल्यू. तो 30 जो है ये कितनी देर में जीरो होगा? 3 सेकंड में जीरो, 3 सेकंड में वापस. सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 seconds. Is it okay? Confusing तो नहीं हो रहा ज्यादा? Please give me a thumbs up if it is clear. Please give me a thumb. Please give me a thumbs up if the audio is clear. Can you hear me? Okay. Now the question was 50 की स्पीड से फेंका गया किसी को एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज. 50 की स्पीड पे फेंका गया एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज. इसका मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है 40, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड है 30. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन स्पीड इज 40, वर्टिकल डायरेक्शन स्पीड इज 30. मेरे को ये हॉरिजॉन्टल से मतलब ही नहीं है यार. ये 40 की जगह अगर 40 करोड़ भी आ जाता तो भी मैं इसको देखता ना. दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस. टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते टाइम
मैं इसको देखूंगा ही नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते टाइम मैं सिर्फ ये 30 को देखूंगा, क्योंकि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है दैट विल जस्ट डिपेंड अपॉन द वर्टिकल वेलोसिटी। ये मोशन इन 1D का क्वेश्चन बन गया कि मैंने 30 से बॉल को ऊपर फेंका है, 30 से मैंने किसी बॉल को ऊपर फेंका, बताओ वो कितनी देर में ऊपर जाके नीचे आ जाएगी। एंड द आंसर इज सिंपल, 6 सेकंड्स। तुमने पिछली क्लास में किया है, बिकॉज 30 becomes 20, 10, 0, 10, 20, 30, as simple as that, right? मोशन इन 2D के जो क्वेश्चंस हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन के जो क्वेश्चंस हैं, उनमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक 2D मोशन को हम 1D मोशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2D मोशन को 1D मोशन में हमने कन्वर्ट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली हमने वही चीज की। फेंका गया था 50 से और मैंने उसको 1D मोशन में कन्वर्ट करके उसकी वेलोसिटी देख ली 30। अब 30 से फेंका गया, अब ये 1D मोशन का क्वेश्चन बन गया। अगर मैं किसी बॉल को 30 से ऊपर फेंक रहा हूं, इट गोज अप इन 3 seconds, कम्स डाउन इन 3 seconds, total time of flight is 6 seconds. Okay, this should be clear now. So my total time of flight is 6 seconds. Time of flight is 6 seconds. अब जो मेरी रेंज है, now next thing is, जिस तरीके से मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी पे डिपेंड करता था, इसी तरीके से मेरी जो रेंज है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी। रेंज है, क्योंकि रेंज क्या होती है, एक्स एक्सिस में कितना आगे गया पार्टिकल। तो रेंज एक्स एक्सिस में कितना आगे गया पार्टिकल। क्वेश्चन क्या था कि नेट कहां पे लगाऊं मैं। यहां पे अगर मेरे को नेट लगाना है तो वन थिंग इज, लगेगा तो जमीन पे ही ना, डिस्टेंस तो यहां से देखा जाएगा ना। तो ये क्या, जस्ट एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, स्पीड इन एक्स एक्सिस इनटू टाइम। अब टाइम के लिए कोई एक्स वाई एक्सिस नहीं होती, टाइम इज कॉमन फॉर बोथ। दिस इज अ गुड थिंग जो इसको हम यूज कर रहे हैं कि हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया वर्टिकल वेलोसिटी को यूज करके, वर्टिकल वेलोसिटी को यूज करके हमने टाइम निकाल लिया, और फिर वो टाइम मैं हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए यूज कर रहा हूं। तो अब मेरे को टाइम ऑफ फ्लाइट पता है 6 सेकंड, और मेरे को हॉरिजॉन्टल स्पीड पता है 40। जब ट्विंकल क्वेश्चन कर रही थी तो उसने कुछ सॉल्व करके कुछ आंसर निकाला 300, 200, 400। मैंने एकदम से बता दिया गलत है। वो कैसे किया मैंने, अब ये नहीं कि ये क्वेश्चन मैं घर से बना के लाया था, ठीक है, मैं रैंडमली बना रहा हूं। मेरे दिमाग में आ गया कि 37 डिग्री का एक एंगल तुम्हें बता दूं, ट्रायंगल में क्या वैल्यूज होती है। सो आई जस्ट क्रिएटेड अ क्वेश्चन। तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने दिमाग में कैलकुलेट कर दिया कि यार जो रेंज आएगी दैट इज गोना बी 240। और वो मैंने कैसे किया, बिना कॉपी पेन यूज किए मैं कैसे कर रहा था, ठीक है। मैंने क्या किया, पहले तो रेंज निकाल लेते हैं, ठीक है। सो दिस रेंज विल बी इज इक्वल टू 40 into 6. This gives me 40 into 6 is equal to 240 मीटर। इसी तरीके से मैं हाइट निकाल सकता हूं। अब हाइट निकालने के लिए तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, तुम्हें जस्ट क्वेश्चन तुम्हारा इतना सा है कि एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया 30 की स्पीड से, 30 की स्पीड से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया, तो उसकी मैक्सिमम हाइट तुम निकाल लोगे ना, हाइट निकाल लोगे, नॉट अ बिग डील, राइट। 30 की स्पीड से ऊपर फेंका गया तो 3 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा ये। देख लो हाइट क्या आएगी, राइट। फॉर्मूला लगाओगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, निकल जाएगी हाइट। अब मैं क्या कर रहा था, मैंने एकदम से ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर दिया, तो मैंने बिना कुछ लिखे थे, नाउ आई वांट यू टू सॉल्व क्वेश्चंस विदाउट यूजिंग ऑल दीज नोटबुक्स। मैंने बिना कुछ देखे क्या किया, मैंने देखा कि फायर किया है 50 पे, एंगल है 30, 37। पहले तो मैंने कैलकुलेट कर दिया कि हॉरिजॉन्टल होगा 40, वर्टिकल होगा 30, 40, 30। तो मैंने देख लिया कि वर्टिकल 30 है, मतलब ऊपर जाएगा 3 सेकंड में, नीचे आएगा 3 सेकंड में, मतलब टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज 6 सेकंड्स। 6 सेकंड में प्रोजेक्टाइल ऐसे जाके नीचे आ जाएगी।
time of flight is 6 seconds, horizontal direction में the velocity is 40. ठीक है, so time of flight is 6 seconds, horizontal velocity is 40, 40 into 6, 240 is the range, right? So this is how I calculated the time of flight and range. I hope this was all clear to you. I want to give you a few questions. बहुत ही random मैं तुम्हें questions अभी create करके दे रहा हूँ. There is no special stuff in this. तुम भी अपने लिए कुछ random questions create करके solve कर सकते हो. All the questions will have what? Will have initial velocity, will have angle of projection. तुम्हें find क्या करना होगा? Time of flight, range, and maximum height. I'm giving you a few questions as homework. This is just for your own practice. तुम ऐसे हजारों questions create कर सकते हो. So the first question is, a particle is fired at a speed of 30√2. Angle of projection is 45 degrees. Next question is, a particle is fired at a speed of 30. Angle of projection is 30 degrees. Next question is, a particle is fired at a speed of 60 and angle of projection is fired at a speed of 50 and angle of projection is 60 degrees. In all these three questions, find the time of flight, find the range of flight, and find the maximum height. What I feel is you need more practice. जो मुझे realize हो रहा है अभी कि तुम्हारे जो पिछले chapters थे, जब मैं तुम्हें पिछले classes में बोलता था ना कि ये हमने कर लिया, अब you revise these questions from whichever book and whichever notes that you have. So what I'm realizing is that you people have not been doing that revision. You people have not been practicing those questions. Okay, so this is what I am feeling right now. तुम्हारी calculation की speed और तुम्हारी calculation करने का तरीका देख के मुझे ऐसा पता चल रहा है, right? So I'll try from next few classes onwards if I can send you some practice questions. जब मैं बायजूस में पढ़ाता था तो हमारा एक प्रोटोकॉल था, क्लास के बाद हम बच्चों को DPPs देते थे. That's called a daily practice problem. So I can try to create those DPPs. मैं कोशिश करूंगा कि हर क्लास के बाद I give you some practice questions. वो questions तुम्हें करने ही करने हैं. But उससे भी अच्छा है, I would recommend you become responsible. Because ये जो तुम्हारा IIT JEE ये NEET है, ये तुम अपने आप के लिए दे रहे हो. Okay. If I teach you something and then I tell you that okay, now you practice these questions from whichever book you have, you go home and practice these questions. Okay, if I'm saying something, there is a meaning to it, right? So I'll see you tomorrow in the next class. हम exactly same चीज करेंगे, कुछ भी नया नहीं सीखेंगे. तीन ही चीजें हमें formulas आते हैं, T के, R के और H के. हम T, R, H निकालेंगे अलग अलग scenarios के लिए. But make sure before coming to the next class, you do these questions. Question number 1, 2, and 3. Do these questions again and again and again, and do it faster. एक बार अच्छे से सॉल्व कर लो 1, 2, 3 को, फिर एक बार फिर से 1, 2, 3 को सॉल्व करो थोड़ा सा तेज, फिर 1, 2, 3 को दोबारा सॉल्व करो तेज, फिर 1, 2, 3 को सॉल्व करो दोबारा से तेज. जब तुम्हारा आंसर आना स्टार्ट हो गया 5 सेकंड में, 10 सेकंड में, तब रुक जाना. Give yourself a random question. अपने आप को एक क्वेश्चन दे दो, 45 पे फेंका है, 60 डिग्री के एंगल पे फेंका है, बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है. और जब तुम्हारा आंसर आ गया 5 सेकंड में, तब रुक जाना. लेकिन जब तक तुम्हारा 5 सेकंड में आंसर नहीं आ रहा, keep practicing these questions. All right, boys and girls, thank you very much for joining with me today. I'll see you tomorrow at 2 p.m. Yes, Saik. Manan. कल टेस्ट होगा? नहीं जी, कल टेस्ट नहीं होगा. So there is no test tomorrow. We will be having a class tomorrow 2 p.m. Because we haven't done anything significant in this chapter. So और जो तुम्हारा पहले वाला टेस्ट है, I'm still in the process of checking it. I might individually send you some messages on WhatsApp कि तुम्हारा ये वाला आंसर गलत है, ये इसलिए गलत है. So the last test I'm still in the process of checking, and tomorrow there is no test. Tomorrow we'll be having a class at 2 p.m.
in the afternoon. Yeah, thank you very much for joining. I'll see you tomorrow 2 p.m. Please revise before you come.